Hello friends, welcome to my YouTube channel about the human anatomy and I am Dr. Nitesh Bharadwaj. Today I am going to discuss about the bone of upper limb, that is radius and ulna bone. Radius and ulna bones are situated on the forearm. In this video I am going to cover up the side determinations and features of the radius and ulna bone. On the next video I am going to discuss about the attachments and ossification of the radius and ulna bone. So if you are new in this channel, then subscribe my channel, press the like button and share this video. So let's start the topic about the side determinations and features of the radius and ulna bone. So today's topic is the radius and ulna bone. So first of all, we know that where is the situated the radius and ulna bone and which bone is on that part. Radius bone is present on the lateral side of the body, or we can say that lateral side of the forearm, and ulna bone is present on the medial side of the forearm. Both bones are different from each other. First of all, we know that we can't confuse that is it a radius or it is ulna. So both bones are different from each other. Lateral side radius bone present and medial side ulna bone present. So first we discuss about the radius bone and then we go to the next bone, that is called ulna bone. Radius bone on the other side, a Latin word called ray. The radius is the lateral bone of the forearm. It has three parts. First is upper part, or we can say that upper end. Second is shaft. Third is lower end. So first we go on the side determination of the radius bone. Upper end is having disc shaped head. तो जैसे कि अगर हम बात करें अपर एंड की, इट मीन्स सुपीरियर ऑफ द बोन, मतलब अपर एंड ऊपर की तरफ, साइड सी बात है. अपर एंड इज हैविंग अ डिस्क शेप्ड हेड. There is a totally a rounded and disc shaped head. So the radius head is totally a disc shape. Lower end is expanded with a styloid process. At the end of the bone, which bone? That is radius bone. At the end of the radius bone there is the expanded bone, that is called a styloid process. There is a styloid process on the margins of the lower end that is expanded broadly. At the lower end, anterior surface is in the form of the thick prominent ridge. Okay, so on the anterior surface of the lower end of the radius bone, there is a thick prominent ridge. A very thick prominent ridge is present on the anterior surface of the lower end of the radius. Again, at a lower end, posterior surface present 4 grooves for the extensor tendons. So there is a present of the 4 grooves, that's extender tendons on the posterior surface of the radius bone on lower end. The sharpest border of the shaft is medial border. So on the medial border there is a sharpness present is there. वहाँ पे काफ़ी शार्पनेस है. बोन का क्या होता है, जैसे कि ये मीडियल एंड होता है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शार्पनेस है हमारे रेडियस बोन को लेकर. ओके, लोअर एंड प्रेजेंट ट्यूबरकल ऑन पोस्टीरियर सरफेस कॉल्ड अ डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर. ओके, लोअर एंड प्रेजेंट अ ट्यूबरकल ऑन द पोस्टीरियर surface.
ऑन द पोस्टीरियर सरफेस, मतलब पीछे की साइड अगर देखा जाए तो वहाँ पे हमारे जो लोअर एंड के जो पोस्टीरियर सरफेस है पीछे की तरफ, वहाँ पे एक सरफेस, वहाँ पे एक ट्यूबरकल बनाता है जो कि है डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ द लिस्टर। दैट इज कंप्लीटेड अ साइड डिटर्मिनेशन। तो ये हो चुका है हमारा साइड डिटर्मिनेशन रेडियस बोन का। अब हम बात करेंगे हमारे फीचर्स ऑफ द रेडियस बोन। So we know that radius bone is divided into three parts, that is upper end, shaft and lower end. So first we go on the upper end. Upper end is also divided into three parts, that is head, neck and tuberosity. So first we go on the head. Head, it is a disc shaped. Its superior surface articulates with the capitulum of humerus. The head fits into a socket formed by the radial notch and angular ligament. तो पहली चीज़ तो ये कि हेड जो है वो डिस्क शेप से, मतलब टोटली राउंड एंड डिस्क शेप का बना हुआ है। सुपीरियर सरफेस पे कैपिटुलम ऑफ ह्यूमरस आर्टिकुलेट्स होता है। द हेड फिट्स इनटू अ सॉकेट, जो अपर एंड है, हेड है, वो एक सॉकेट से जुड़ता है जो कि बनाता है रेडियल नॉच और एंगुलर लिगामेंट। ये दो चीज़ बनाता है। अब हम बात करेंगे हमारे नेक की। It is enclosed by the narrow margins of the angular ligaments. The head and the neck are the free from capsular attachment and can rotate freely within the socket. Okay, तो यहाँ पे बात आती है हमारे नेक की। तो नेक में एक एंगुलर लिगामेंट बनाता है जो कि काफ़ी छोटी सी मार्जिन्स है, लाइक कह सकते हैं नैरो मार्जिन्स है। द हेड एंड नेक आर फ्री फ्रॉम द कैप्सुलर अटैचमेंट। तो यहाँ पे जो हेड और नेक है हमारे अपर एंड का, जो रेडियस बोन है उसके अपर एंड का हेड और नेक वो काफ़ी फ्री है, टोटली फ्री कहलाता है, जो कि काफ़ी इजीली फ्रीली मूवमेंट कर सकता है, जो कि सॉकेट के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा ट्यूबरोसिटी। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द मीडियल साइड। तो यहाँ पे जो हमारा ट्यूबरोसिटी है वो मीडियल साइड है। इट इज़ एंटीरियर पार्ट स्मूथ वाइल पोस्टीरियर इज़ रफ। ओके, यहाँ पे हमारा जो ट्यूबरोसिटी है उसका एंटीरियर जो पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, काफ़ी लाइक अगर हम बोन को पकड़ के हम एकदम उसको एंटीरियर पार्ट को लेते हैं, मतलब हाथ से छूते हैं ट्यूबरोसिटी को, ठीक है, तो वो काफ़ी स्मूथ है। बट अगर पोस्टीरियर साइड पे जाएंगे तो वो काफ़ी रफ है। तो ये हो गए हमारे अपर एंड के हेड, नेक और ट्यूबरोसिटी, जो कि हमारे रेडियस बोन के। अब हम बात करेंगे हमारे शेफ्ट के, शेफ्ट ऑफ द रेडियस बोन। ऑन द शेफ्ट देयर इज 3 borders and 3 surfaces are being present. 3 borders, that one is the anterior border, second is the posterior border and third one is the medial border, or we can say that interosseous border. So first we discuss about the anterior border. Anterior border, it extends from the anterior margins of a radial tuberosity to styloid process. Okay, यहाँ पे अगर देखा जाए तो anterior जो border है हमारी वो कहाँ से स्टार्ट होती है, तो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द एंटीरियर मार्जिन्स ऑफ द रेडियल ट्यूबरोसिटी। अगर देखा जाए तो रेडियल ट्यूबरोसिटी से स्टार्ट होते होते एट द एंड स्टाइलॉइड प्रोसेस पे ये ख़त्म होगी हमारी एंटीरियर बॉर्डर। इन द अपर पार्ट द एंटीरियर बॉर्डर इज ऑब्लिक, इज कॉल्ड द एंटीरियर ऑब्लिक लाइन। सो अगर आप स्टार्टिंग में मतलब ऊपर की तरफ देखेंगे अपर पार्ट की तरफ, तो वहाँ पे काफ़ी एक ऑब्लिक लाइन हल्की सी बनती जा रही है, जो कि उसको हम बोलते हैं हमारा एंटीरियर ऑब्लिक लाइन। तो ये हो गई हमारी एंटीरियर बॉर्डर। अब हम बात करेंगे हमारे द पोस्टीरियर बॉर्डर की। इट इज़ क्लियर इन द मिडल, 1/3 ऑफ द अपर ऑब्लिक पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर बॉर्डर इज कॉल्ड पोस्टीरियर ऑब्लिक लाइन। तो ये अपर 1/3 पार्ट पे अगर देखा जाए तो एक ऑब्लिक लाइन बनती है जो कि हम बोलते हैं पोस्टीरियर ऑब्लिक लाइन। थर्ड है हमारा मीडियल बॉर्डर, और हम कह सकते हैं इंटरऑसियस बॉर्डर। इट इज़ शार्प, जाहिर सी बात है ये शार्प होगी, काफ़ी तेज होगी, एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द रेडियल ट्यूबरोसिटी टू द अल्नर नॉच। ओके, तो देखा जैसे कि देखा जाए तो रेडियल ट्यूबरोसिटी से स्टार्ट होते होते ये जाएगी हमारे अल्नर नॉच की तरफ, और ये होगी हमारी मीडियल बॉर्डर। नाउ वी गो ऑन द 3 surfaces of the shaft. That one is the anterior surface, second is the posterior surface, and third one is the lateral surface.
First is the anterior surface. It lies between the anterior and medial border. So it lies between the anterior and medial border. जाहिर सी बात है कि anterior और medial border के बीच में जो होगा वो हमारा anterior surface होगा. Second है posterior surface. It lies between the posterior and medial border. मतलब posterior और medial border के बीच में जो है वो हमारा posterior surface है. Third one is the lateral surface. It lies between the anterior and posterior border. तो anterior और posterior के बीच में जो है वो हमारा lateral surface कहलाएगा. अब हम बात करेंगे हमारे lower end of the radius bone के बारे में. Lower end, total there is a 5 surfaces present on the lower end of the radius bone that is present on the forearm. First surface is the anterior surface, second is the posterior surface, third is the medial surface, fourth is the lateral surface, and fifth is the inferior surface. That means there is a total 5 surfaces present on the lower end of the radius bone. So let's go about the discuss. First surface is, this is the anterior surface. It is in the form of a thick prominent ridge. तो एक thick prominent ridge टाइप की ये है anterior surface. Posterior surface. It is present 4 grooves and a 4 tubercle dorsal of the wrister. So there is a present of 4 grooves and a tubercle. 4 grooves बनाती है और एक tubercle बनाती है dorsal of the wrister के ऊपर. Next है हमारा lateral surface. It is prolonged downwards as the stellate process. Lateral surface हमारा नीचे की तरफ जाता है stellate process की तरफ. Fourth है हमारा medial surface. It is present ulnar notch for the head of ulnar. तो it is present ulnar notch for the head of ulnar. ulnar के head पे बनाती है. Last है हमारी inferior surface. It present a triangular area for the scaphoid bone and medial cranial area for the lunate bone. So जैसे कि ये बता रहे हैं कि इट इज़ प्रेजेंट अ ट्राइंगुलर एरिया, वहाँ पे एक ट्राइंगुलर एरिया बनाती है फॉर द स्कैपॉइड बोन. किसके लिए? स्कैपॉइड बोन के लिए. अगर आप इंफीरियर सरफेस मतलब नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक हल्का सा ट्राइंगुलर शेप बनाती है, एक एरिया है जहाँ पे स्कैपॉइड बोन अटैच होगी एंड मीडिया क्वाड्रेंगुलर एरिया फॉर द लूनेट बोन. यहाँ पे 2 बोन अटैच होगी नीचे की अगर तरफ इंफीरियर सरफेस पे देखा जाए तो एक स्कैपॉइड एंड लूनेट बोन. तो ये हमारा हो गया टोटल साइड डिटर्मिनेशन एंड फीचर्स ऑफ द रेडियस बोन. अब हम बात करेंगे हमारे अल्ना बोन के बारे में. दैट बोन इज़ द अल्ना बोन. On the other side, the Latin word says elbow. It means elbow. So first of all, we discuss about the features and then we'll go to the side determinations of the ulna bone. It is the medial bone of the forearm. It is a normally we can say that it's a medial bone of the forearm. And lateral bone is the radius bone. It consists 3 parts again, as it is the radius bone have also a 3 parts and ulna bone is also a 3 parts. That one is the upper end, lower end and the shaft. Side determination of the ulna bone. The upper end is hook like, which is connectively directed forwards. तो ऊपर का जो भाग है मतलब अपर एंड वहाँ पे एक हुक लाइक बनता है, वो पूरा हुक लाइक बनता है. लाइक दिस वन इज लाइक हुक. पूरा टोटली एक हुक बनता है जो कि इसको हम अपर एंड बोलते हैं हमारा, जो कि कनेक्ट होता है हमारा डायरेक्टेड फॉरवर्ड्स मतलब आगे की तरफ. द लेटरल बॉर्डर ऑफ द शाफ्ट इज शार्प एंड क्रिस्ट लाइक. तो अगर लेटरल बॉर्डर की बात करी जाए तो काफ़ी शार्पनेस होती है, क्रस्ट लाइक होती है. ये हमारी हो गई साइड डिटर्मिनेशन ऑफ द अल्ना बोन. नाउ वी कम ऑन द फीचर्स ऑफ द अल्ना बोन. एज वी नो दैट रेडियस बोन हैव ऑल्सो 3 फीचर्स, दैट इज अपर एंड, शाफ्ट एंड लोअर एंड. एंड अगेन वी डिस्कस सेम एज इट इज
on the ulnar bone, that is upper end, shaft and lower end. Upper end, it consists of two process and two notch. So there is a two process and two notch that present on the upper end. First two process, that one is the first one is the oligurine process. It is the process of ulna which projects upward. It has the 5 surfaces. Okay, सो देखा जाए तो अल्ना जो हमारा ऑलिक्रोन प्रोसेस, जो हमारा पहला प्रोसेस है, ठीक है, सेकंड है हमारा कोरोकोइड प्रोसेस, पहला हम पढ़ेंगे हमारा ऑलिक्रोन प्रोसेस. तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अल्ना विच प्रोजेक्ट्स अपवर्ड. तो ये प्रोसेस है हमारी अल्ना की जो कि अपवर्ड करती है, जो कि ऑलिक्रोन प्रोसेस पे 5 सरफेस है. फर्स्ट है हमारा एंटीरियर, सेकंड है हमारा पोस्टीरियर, थर्ड है हमारा सुपीरियर, फोर्थ है हमारा मीडियल एंड फिफ्थ है हमारा लेटरल. टोटल ये 5 सरफेसेस है जो कि ऑलिक्रोन प्रोसेस में दिखाते हैं. ओके, सेकंड वन इज़ द कोरोनॉइड प्रोसेस. इट इज़ द प्रोसेस विच प्रोजेक्ट्स अपवर्ड फ्रॉम द शाफ्ट. साफ साफ बात है कि शाफ्ट से जो ऊपर फॉरवर्ड की तरफ, आगे की तरफ निकलते हैं, उसको हम बोलेंगे कोरोनॉइड प्रोसेस. जो कि कोरोनॉइड प्रोसेस पे हमारे 4 सरफेसेस हैं. It has the 4 surfaces. First is anterior, second is superior, third is medial and fourth one is the lateral surface. Anterior surface की बात करी जाए, present tuberosity called ulnar tuberosity. अगर यहाँ पे अगर हम बात करी जाए anterior surface की, तो वहाँ पे एक tuberosity बनाती है जो कि है हमारी ulnar tuberosity. सेकेंड की बात करी जाए, सेकेंड लेटरल सर्फेस की बात करी जाए, इट प्रेजेंट इन अपर पार्ट अ नॉच कॉल्ड रेडियल नॉच फॉर हेड ऑफ द रेडियस. ओके, यहाँ पे एक नॉच बनाती है लेटरल सरफेस पे, जो कि हम उसको बोल सकते हैं हमारा रेडियल नॉच. थर्ड है हमारा मीडियल सरफेस की बात की जाए, इट इज़ कंटिन्यूज विद द मीडियल सरफेस ऑफ द शाफ्ट. तो जाहिर सी बात है कि मीडियल सरफेस हमारे मीडियल सरफेस ऑफ द शाफ्ट को कंटिन्यू करेगी. सिंपल है इसी बात. नाउ वी कम ऑन द नॉच. तो जैसे कि 2 प्रोसेस हो चुके हैं, तो अब हमारे आएगी 2 नॉच की बात. तो फर्स्ट वन इज़ द ट्रॉक्लियर नॉच, जो कि पहली है हमारी ट्रॉक्लियर नॉच. इट फॉर्म्स आर्टिकुलर सरफेस दैट आर्टिकुलेट्स विद द ट्रैक्लियर ऑफ द ह्यूमरस टू फॉर्म द एल्बो जॉइंट. यहाँ पे एक एल्बो जॉइंट बनाती है जो कि हमारे ट्रॉक्लियर नॉच बनाती है. रेडियल नॉच की बात की जाए, इट आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ रेडियस टू फॉर्म द सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट. ओके, यहाँ पे हमारी रेडियल नॉच एक जॉइंट बनाती है जो कि है हमारा सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट. तो दोनों ही जॉइंट बनाती है. ट्रॉक्लियर नॉच जो है हमारी वो एल्बो जॉइंट बनाती है. रेडियल नॉच है हमारी वो सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बनाती है. अब हम बात करेंगे हमारे शाफ्ट ऑफ द अल्ना. अल्ना के शाफ्ट के बारे में बात करेंगे, हमारे जो फीचर्स है. तो इट कंसिस्ट 3 बॉर्डर्स 3 सरफेसिस. 3 बॉर्डर और 3 सरफेस बनाती है शाफ्ट हमारी. तो पहले हम बात करेंगे हमारी 3 बॉर्डर, जो कि है लेटरल बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर. फर्स्ट है हमारा लेटरल बॉर्डर. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इंटर ऑसियस बॉर्डर. ओके, लेटरल बॉर्डर को हम इंटर ऑसियस बॉर्डर भी कहेंगे. इट इज़ शार्पेस्ट इन द मिडल टू फोर्थ. अगर देखा जाए तो मिडल टू फोर्थ की तरफ देखा जाए तो लेटरल बॉर्डर काफ़ी ज़्यादा शार्पनेस की तरफ है. नेक्स्ट आती है हमारी एंटीरियर बॉर्डर. इट इज़ थिक एंड राउंडेड. तो शाफ्ट में अगर एंटीरियर बॉर्डर देखें तो काफ़ी थिक है, मोटी है, और राउंडेड मतलब थोड़ी सी गोलाई में है. पोस्टीरियर बॉर्डर की बात की जाए तो इट इज़ सबक्यूटेनियस. अब हम बात करेंगे हमारे शाफ्ट के 3 सरफेसेस की, जो कि हमारा एंटीरियर सरफेस, मीडियल सरफेस और जो कि हमारा पोस्टीरियर सरफेस. पहले हमारा बात करेंगे हमारा एंटीरियर सरफेस. इट लाइज बिटवीन एंटीरियर एंड इंटरऑसियस बॉर्डर. तो ये किसके बीच में है देखा जाए तो एक एंटीरियर एंड इंटरऑसियस बॉर्डर के बीच में है. मतलब लेटरल और एंटीरियर बॉर्डर के बीच में है हमारी एंटीरियर सरफेस. अ न्यूट्रन फोरामेन इज सीन ऑन द अपर पार्ट ऑफ द सरफेस. ओके, यहाँ पे एक न्यूट्रन फोरामेन जैसा कि अपर पार्ट के सरफेस में बताया जाएगा, न्यूट्रन फोरामेन. मिडियल सरफेस की बात करें तो इट लाइज बिटवीन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर्स. तो एंटीरियर और पोस्टीरियर के बॉर्डर के बीच में मीडियल सरफेस है. नेक्स्ट है हमारा पोस्टीरियर सरफेस. इट लाइज बिटवीन द एंटीरियर एंड इंटरऑसियस बॉर्डर. ओके, यहाँ पे वापस है कि
पोस्टीरियर जो हमारी सरफेस है वो एंटीरियर और लेटरल बॉर्डर के बीच में है। इट इज़ सब डिवाइडेड इनटू 3 एरियाज बाय 2 लाइन्स। ओके, यहाँ पे देखा जाए तो 2 लाइन के द्वारा 3 सब एरियाज में डिवाइड है ये। एन ऑब्लिक लाइन डिवाइड्स इनटू अपर एंड लोअर पार्ट्स। अगर देखा जाए तो ऑब्लिक लाइन डिवाइड करती है 2 पार्ट में, जो कि एक ऊपरी भाग मतलब अपर एंड एक नीचे है मतलब लोअर पार्ट। द लोअर पार्ट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू वर्टिकल लाइन इनटू अ मीडियल एंड लेटरल। और अगर जैसे देखा जाए तो जो हमारा लोअर पार्ट है वो और डिवाइड होती है वर्टिकली, जो कि 2 पार्ट में फिर डिवाइड होती है, एक मीडियल एंड लेटरल। तो ये हमारी हो गई शेफ्ट की 3 बॉर्डर्स और 3 सरफेसेस। अब हम बात करेंगे हमारे लोअर एंड ऑफ द अल्लाह के लोअर एंड पे अगर हम साइड फीचर्स की बात करें जाए, इट कंसिस्ट हेड एंड स्टाइलेट प्रोसेस। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड है कह सकते हैं, जो कि हमारा पहला है हेड और सेकंड है हमारा स्टाइलेट प्रोसेस, जो काफ़ी लोअर पे है। फर्स्ट हम हेड की बात करेंगे। द हेड आर्टिकुलेट्स विद द अल्नर नॉच ऑफ द रेडियस टू फॉर्म इंफीरियर रेडियो अल्नर नॉच जॉइंट। तो यहाँ पे एक अगेन जॉइंट बनाएगी हमारा हेड, जो कि हो गया रेडियो अल्नर जॉइंट। इट इज़ सेपरेट फ्रॉम द रिस्ट जॉइंट बाय द आर्टिकुलेट डिस्क। ओके, ये रिस्ट जॉइंट को सेपरेट करती है आर्टिकुलेट डिस्क के द्वारा। अल्नर आर्टरी एंड नर्व्स लाइज ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द हेड ऑफ अल्नर। ओके, यहाँ पे अगर हेड ऑफ अल्नर की बात करी जाए तो यहाँ पे हमारी आर्टरीज और नर्व्स, अल्नर नर्व्स एंड अल्नर आर्टरी पासिस होंगी, रखी गई है वहाँ पे। अब हम बात करेंगे हमारे स्टाइलेट प्रोसेस के बारे में। इट प्रोजेक्ट्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम द पोस्टीरियर मीडियल साइड ऑफ द लोअर एंड ऑफ अल्नर। ओके, यहाँ पे ये स्टाइलेट प्रोसेस अगर देखा जाए तो ये काफ़ी नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड्स है, फ्रॉम द पोस्टीरियर मीडियल मतलब पीछे और अंदर की तरफ से, टोटल साइड ऑफ द लोअर एंड ऑफ द अल्नर, मतलब अल्नर के एकदम नीचे के वहाँ पे ये स्टाइलेट प्रोसेस दिखाती है। Posteriorly between the head and the stellate process there is a grooves for the tendon of the extensors carpal ulnus। ओके, वहाँ पे अगर देखा जाए तो एक वहाँ पे ग्रूव बनाती है, टेंडन बनाती है, जो कि हमारी एक्सटेंशन कार्पल अल्नस। अगर देखा जाए तो वहाँ पे एक ग्रूव है। तो ये हो गया हमारा लोअर एंड। So our topic is completed about the side determinations and features of the radius and ulnar bones. Both bones are completed as the topic, side determinations and features. On the next video we discuss about the attachments. It means muscles attachments of the radius and ulnar bones and the ossifications of the radius and ulnar bones. और जाते जाते मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप नए हैं चैनल पे तो जाके फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, फटाफट लाल बटन दबा दीजिए और जितना हो सके ये वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक का बटन तो दबाते रहिए, वो तो आपका धर्म है, धर्म और कर्म करना चाहिए, तो जाहिर सी बात है। एंड मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये वीडियो और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आ रही है अटैचमेंट ऑफ द रेडियस बोन एंड अल्नर बोन, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरी तबीयत ख़राब है, इस वजह से मैं थोड़ा डिले कर दिया है मैंने अपना वीडियोस, जो कि मेरा टाइमिंग था वो बहुत काफ़ी डिले हो गया है और मेरी शक्ल देख के ही आपको लग रहा होगा मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार हूँ, तो उसके लिए मैं काफ़ी माफ़ी चाहता हूँ कि काफ़ी डिले चल रही है, सॉरी फॉर दैट। और जाते जाते इतना ही कहूँगा कि ध्यान रखें, अपना सेहत का ध्यान रखें एंड हम नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर मिलते हैं। हमारा जो अटैचमेंट ऑफ द रेडियस एंड अल्नर बोन है। सो बाय बाय, टेक केयर, अलविदा।